भक्तेर्भक्ष नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। श्री कृष्ण ब्रह्मनारद वैशसूत सुखानिहो भागवत गुरून् वन्दे भागवतार्थसिद्धये। स्वयंभो नारद शंभो कुमार मनुकर्दमन् प्रह्लाद जनक भीष्मो बलिजाम सुकान्नमं श्रीधर सनातनं सजीव विश्वनाथकं महाभागवतान् वन्दे भगवतार्थदायकम्। श्रीमद्भागवतं वन्दे श्रीकृष्णं नादविग्रहं यदिवाश्रयमत्रेण फलते प्रेमं पादकम्। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र विजयते तमम। যদি আমাদের নিত্য শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ্য, তথাপি একটি বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আগামীকাল গুরু পূর্ণিমা, সনাতন গোস্বামী ত্রিভাব তিথি পূজা মহোৎসব ভাষণ। আর ওই তিথি ব্যাসদেবের আবির্ভাব তিথি পূজা। যখন বেদধর্ম লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল গৌতম মুনির অভিশাপে, জগতে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। দেবতাগণ ক্ষীরসাগরে যায় ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা মুখে জগতের দুর্দৈবের কথা নিবেদন করেছিলেন। তাতে ভগবান তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আমি অবিলম্বেই দ্বাপরান্তে অবতীর্ণ হয়ে বেদবাণী উদ্ধার করব। তার জন্যই তিনি এই আষাঢ়ী পূর্ণিমায় পরাশরের বীর্যকে আশ্রয় করিয়া সত্যবতী হইতে কুরুক্ষেত্রের এক দ্বীপের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার জন্ম প্রসঙ্গ এমনই অদ্ভুত। পরাশর মুনি যখন নদী পার হচ্ছিলেন, তখন উপরিচার বসুর কন্যা মৎস্যগন্ধা ঘাটে ছিলেন। তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু গায়ে ছিল মাছের গন্ধ। হ্যাঁ, ভগবত ইচ্ছায় পরাশর মুনি চিত্ত তার প্রতি আকৃষ্ট হল।
তিনি বিহারের প্রস্তাব দিতেই সেই কন্যাটি বলিল, আমার নাম মৎস্যগন্ধা, আমার অঙ্গগন্ধে কেউ আমার কাছে থাকে না। পরাশর মুনি বললেন, কোনো চিন্তা নেই, আমি তোমাকে পদ্মগন্ধা করছি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে পদ্মগন্ধা করলেন। কিন্তু দিনে কি করে বিহার হবে? যোগ বলে আকাশ অন্ধকার করে দিয়ে দ্বীপের মধ্যে তার সঙ্গে বিহার করলেন। বিদ্যাদান করার সঙ্গে সঙ্গে একটি পুত্রের জন্ম হলো। তার নাম রাখলেন কৃষ্ণ। তিনি ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ, তার নাম দিলেন কৃষ্ণ। দ্বীপে জন্ম হেতু তার অপর নাম দ্বৈপায়ন। পরবর্তীকালে তিনি বেদবাণীকে উদ্ধার বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া তার নাম বেদব্যাস হয়েছে। এই বাংলা বুঝতে পারবে না? আষাঢ়ী পূর্ণিমায় দ্বীপের মধ্যে ব্যাস ও নারায়ণও ঘুরি। ব্যাস বিনা সামান্য জীব এই বেদবাণীকে প্রকাশ করতে পারে না। কেন বেদবাণী লুপ্ত হলো? গৌতম মুনির অভিশাপ। কেন অভিশাপ দিয়েছেন? কার্তিক ও গণেশের কিছু চালাকির জন্য। কার্তিক গণেশের চালাকির জন্য গৌতম মুনি একটু বিপদে পড়েছিলেন। তার জন্যই তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন। ঘটনা হয়েছিল, একদিন নারদ মুনি আসিয়া পার্বতীকে বললেন, দেবী, আপনাকে কিন্তু মহাদেব বেশি ভালোবাসে না। যাকে বেশি ভালোবাসেন তাকে তিনি শিরে রাখিয়াছেন আর আপনাকে কোলে রাখিয়াছেন। আপনাকে কোলে রাখেন আর তাকে শিরে রেখেছেন, অর্থাৎ গঙ্গাকে তিনি মস্তকে রেখেছেন আর আপনাকে কোলে রাখেন। তার জন্য পার্বতী মানিনী হয়ে গেলেন, মান করে বসে রইলেন। কার্তিক গণেশ এসে দেখে মা রোদন করছেন। কেন, কি হয়েছে মা? বলে, আমার মনে দুঃখ, তোরা নিবারণ করতে পারবি? নিশ্চয়, আজ্ঞা করুন। বলে, তোরা যদি তোদের পিতার মস্তক থেকে এই গঙ্গাকে নামাতে পারিস তাহলে আমি অন্নপানাদি গ্রহণ করব, নইলে নয়। ব্যাস। কার্তিক গণেশ বললেন, কোনো চিন্তা নেই মা, এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি। এই বলে তারা দুজনে ব্রাহ্মণ সেজে গৌতম মুনির আশ্রমে অতিথি হলেন। গৌতম মুনির আশ্রমে ভারতবর্ষে যত মুনি ঋষি ছিলেন তারা সব ওখানেই প্রসাদ পেতেন, কারণ 12 বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, কোথাও ভিক্ষা পেতেন না। গৌতম মুনি বড় প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি ধান্য রোপণ করতেন, সকালে অপরাহ্নকালে ধান্য কেটে চাল তৈরি করে
রান্না করে ঋষিদের প্রসাদ দিতেন। এইভাবে 12 বছর করে চললেন, একদিনের ব্যাপার না। যখন সুভিক্ষ আসলো তখন ঋষিগণ নিজ নিজ আশ্রমে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু গৌতম মুনি বললেন, আপনারা আমাকে ছেড়ে যাবেন না, আপনারা আমার আশ্রমেই সুখে ভজন করুন। গৌতম মুনির অনুরোধে তারা যাইতে পারলেন না। এইদিকে কার্তিক গণেশ যে বলছেন যে আপনারা সুভিক্ষ হয়েছে, এখন একান্ন খাচ্ছেন কেন? একান্নং না ভঞ্জিত বৃহস্পতি সমাদপি। বৃহস্পতির সমান কোনো ব্যক্তির কাছ থেকেও এক অন্ন, অর্থাৎ বারবার অন্ন গ্রহণ করবে না। বলেন এটা মুনি ঋষি প্রার্থনা করছেন, সেই জন্য আমরা যাচ্ছি না। বলে এটা ঠিক নয়, ধর্মহানি হয়। আর এদিকে কার্তিক গণেশ পার্বতীর সখী জয়াকে বললেন, তুমি গাভী হয়ে গৌতম মুনির ধান খেতে যে ধান খেতে থাকো, যখন তোমার গায়ে প্রহার করবে তুমি চিৎকার করে মৃতের মতো পড়ে যাবে, তারপর যা করবার আমি করব। গণেশ ঠাকুর বুদ্ধিমান আর কার্তিক ঠাকুর হলেন চতুর। এই কথোপকথন হচ্ছে, এমন সময় সেই গাভীটা যে ধান খেতে আরম্ভ করলো, গৌতম মুনি তাকে তাড়াচ্ছেন, সরে যাও সরে যাও। গরু যদি জল খায়, কিছু খায়, তখন তাকে তাড়না করতে নাই। কারো বাড়িতে এসেছে জল খাচ্ছে, সেই সময় তাকে তাড়না করবে না। কিছু খাচ্ছে, তাড়না করবে না। বারবার বলছে চলে যাও চলে যাও, চলছে না। তাই একটা তৃণ দিয়ে তার গাত্রে আঘাত করতেই সে চিৎকার করে হাত পা ছেড়ে চোখ মুখ উল্টে পড়ে গেল। আর এই কার্তিক গণেশ বললেন, দেখলেন ঋষিগণ, এই গৌতম মুনি কিন্তু গোহত্যা পাপে পাপী হতে চলেছে, একটু পরেই গাভীটা মারা যাবে। ওই গোহত্যা পাপ কিন্তু আপনাদেরও লাগবে। এত বড় চালাকি আরম্ভ করে দিল। গৌতম মুনি তো বিপদে পড়ে গেলেন, কি ব্যাপার, সামান্য একটি তৃণ দিয়ে আঘাত করেছি, এই গাভীটা এমন হয়ে গেল। কার্তিক গণেশ ছুটে এসছে, মহেশ্বর এই গাভীটা আর বাঁচবে না। আপনি গাভীকে আঘাত করলেন, বিষ্ণুর সহিত 33 কোটি দেবতা যার অঙ্গে বাস করে তাকে আপনি আঘাত করেছেন। এ তো মৃতপ্রায় হয়েছে। এই গোহত্যা পাপে আপনি পাপী হবেন, আর এখানে যারা থাকবে তারা সব পাপী হবে। কি হবে, উপায় কি হবে? বলে আমরা দুইজন বৌদ্ধ। কার্তিক গণেশ বললেন, আমরা দুইজন বৌদ্ধ, চিকিৎসা করতে পারি। কি চিকিৎসা? যদি শিবের মস্তকের থেকে গঙ্গা এনে সেই গঙ্গার জল এই গাভীর গায়ে সেচন করেন, তাহলে গাভী জীবিত হবে। তা না হলে গাভী মারা গেলেই আপনি হত্যা পাপে পাপী হবেন। গৌতম মুনি ভীত হয়ে পড়লেন, সে কি? আর মুনি ঋষিগণ নিজ নিজ আশ্রমে চলে গেলেন। গৌতম মুনি দক্ষিণ অন্তঃকরণে উপায় কি হবে চিন্তা করতে করতে নাসিকে যে শিবের আরাধনা করতে লাগলেন। শিব অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হলেন। বৎস, কি চাও, কি জন্য তপস্যা করছো? বলে, প্রভু আমি তো গোহত্যা পাপী হতে চলেছি,
আপনি যদি আপনার মস্তক থেকে গঙ্গাকে না দেন তাহলে আমি ওই গাভীকে বাঁচাতে পারবো না, আর গোহত্যা পাপী হয়ে যাব প্রভু, আমার জীবনে বিরাট কলঙ্ক রয়ে যাবে। শিব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ঠিক আছে, অর্ধেক গঙ্গা তো ভগীরথ নিয়ে গিয়েছে, আর অর্ধেক গঙ্গা তুমি নিয়ে যাও। তাকে দিলেন সেই গোদাবরী, সেই গঙ্গা আসলো, সেই গঙ্গার জল গাভীর গায়ে দিতেই গাভীটি উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান হয়ে গেল। গৌতম মুনি বিস্মিত হয়ে গেলেন, সে কি? একে ধ্যান করে দেখেন কার্তিক গণেশের চালাকি, আর ওই গাভীটি হচ্ছে পার্বতীর সখী জয়া। মুনি ঋষিগণ তার প্রতি অভিযোগ করে চলে গেছেন, তাই মনে একটু ক্ষোভ হলো, আমি যাদের 12 বছর বসে বসে অন্নদান করলাম, আজকে নাম আমাকে মিথ্যা অপবাদী করবার জন্য চললেন। তাই তিনি অভিশাপ দিলেন, যাও, জগৎ থেকে বেদ বাণী লুপ্ত হয়ে যাক। বলার মাত্রই বেদ বাণী লুপ্ত হয়ে গেল। ব্রাহ্মণদের মনে আর বেদ বাণী নেই, পড়াশোনা করলেও মুখস্থ করতে পারে না, বেদ বাণী যেন অন্তর্ধান করল। তার জন্য কি হবে? দৈব কর্ম, পৈতৃকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেল। দেবতাগণ ভগবান ক্ষীর সাগরের তীরে যে ভগবানের আরাধনা করলেন। ভগবান বললেন, মা ভাই দেবগণ, তোমরা ভয় পেও না, বলো কি কর্তব্য? বলে, পৃথিবীতে বেদবাণী লুপ্ত হয়েছে, দৈবকর্ম পৈতৃকর্ম বন্ধ হয়েছে, আপনি বেদবাণী উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন। আপনি বিনা এ কাজ অন্য কেউ করতে পারবে না, এটা মনুষ্যের সাধ্য নয়। ভগবান আশ্বাস দিলেন, আমি দাপরান্তে পরাচরে বীর্যকে আশ্রয় করে সত্যবতী হইতে আবির্ভূত হব, ততকাল তোমরা অপেক্ষা করো। তারা আশ্বস্ত হয়ে ফিরলেন। দেখতে দেখতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা উপস্থিত হল। ওই সময় যে পরাশর মুনি, এত বড় মহান মুনি, যার চিত্তে কোনোদিন কোনো নারী চিন্তা আসে না, নারী দর্শনে চিত্তে ক্ষোভ হয় না, ঈশ্বর ইচ্ছায় সত্যবতী দর্শনে তার চিত্তে ক্ষোভ হলো এবং তার সঙ্গে মিলিত হলেন। তার গর্ভ হইতেই ভগবান বেদব্যাস কৃষ্ণবর্ণ নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তারপরে যথাসময়ে তিনি সর্বজ্ঞতা গুণে কৃষ্ণের কাছে আরাধনা করে সর্বজ্ঞতা লাভ করে বেদ বাণীকে প্রকাশ করলেন। অতএব সেই বেদব্যাসের আবির্ভাব তিথি গুরু পূর্ণিমা তিথি নামে প্রসিদ্ধ। বেদব্যাস জগৎগুরু। আগামীকাল বেদব্যাস श्री कृष्ण द्वैपायन का आविर्भाव महोत्सव भक्तगण माना जा रहे। उद्देश्य आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। उसी पूर्णिमा में भगवान पराशर के बीजों को आश्रय करते हुए सत्यवती के गर्भ से आविर्भूत हुए थे। द्वीप में जन्म के कारण
एक नाम द्वैपायन है, कृष्ण वर्ण के कारण नाम है कृष्ण, वेद विभाग के कारण नाम है वेदव्यास। संसार से वेदवाणी जब लुप्त हो गई तब देवता की प्रार्थना से भगवान द्वापरांत में पराशर के आश्रय करते हुए आविर्भूत हुआ है। बिना वेदव्यास कोई वेद धर्म नहीं जानते हैं। वेदाचार्य वेदव्यास है, वेदाचार्य, उनकी कृपा बिना कोई वेदवाणी नहीं समझ सकते हैं। वेदवाणी उन्होंने ही दिलाया। इसलिए सात तो संप्रदाय पृथ्वी में सनातन धर्मीय संप्रदाय सभी लोग गुरु पूर्णिमा को समादर करते हैं, वेदव्यास को पूजन करते हैं। किंतु दुर्भाग्य की बात, सब स्थान पर अपना अपना गुरु को पूजन करते हैं, परंतु वेदव्यास को पूजन नहीं करते हैं। जिनका आविर्भाव तिथि उनकी पूजा नहीं करते हैं। ये तो मूर्खता, समाज की मूर्खता इस प्रकार चलती है। परंतु जरूर है वेदव्यास भिन्न गुरु है, परंपरा में गुरु है। पहले तो गुरु वेदव्यास के पूजन करें, उसके बाद अपना अपना गुरु को पूजन करो, कोई बात नहीं। परंतु वेदव्यास की पूजा बिना व्यास पूजा संपूर्ण नहीं होते हैं। भगवान विभिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न प्रकार से आविर्भूत होते हैं। सृष्टि के पहले भगवान अपनी सृष्टि को संसार में रखने के लिए एक शब्द की भगवान ने मुखारविंद से एक शब्द निकाले। उस शब्द का नाम है भो। ओम और अथ, ये दो शब्द है मंगलवाचक। तब भो शब्द से एक पुरुष आविर्भूत हुआ। आविर्भूत होके हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आप मुझे सृष्टि किया, मेरा नाम मेरा काम क्या है बता दीजिए। उन्हें बोले तुम्हारा नाम व्यास, जुग जुग में वेदवाणी को प्रकाश करना ही तुम्हारा काम है। तो कैसे संभव? बोले मेरा आशीर्वाद है, बहुकल्पीय वृत्तांत तो तुम देख पाओगे, तुम जान पाओगे, देख पाओगे। आशीर्वाद से उन्होंने बहुकल्पीय वृत्तांतों के लेके पहले 18 पुराण रचना की। सबके वेद के लिए वेद पहले एक वेद था, उसके बाद 4 खंड किया, ऋग यजुर साम अथर्व। वेद को विभाग किया, उनके बाद उनके शिष्य प्रशिष्य लोग वेद वाणी को प्रकाश किया, विभाग किया। ये सब लोग व्यास है। व्यास शब्द का अर्थ है प्रकाश। बी आस घंग आस,
विशेष रूप से वेद वाणी को प्रकाश करने वाला को व्यास कहते हैं। भगवान हार रूप धारण करते हैं, मत्स्य कुर्म रूप धारण करके बहु लीला प्रकाश करने के बाद एक गुरु रूप धारण करके संसार में आविर्भूत होकर वेद वाणी को प्रकाश करते हैं। 28 दापर में 28 व्यास का आविर्भाव होता है। उसमें से कृष्ण द्वैपायन व्यास ही भगवान का स्वरूपभूत है। कृष्ण द्वैपायन व्यास और जो व्यास है वो भगवान का स्वरूपभूत नहीं है। जैसे नित्यानंद जगत गुरु है, नित्यानंद के अनुगात तो शिष्य गुरु बन के मंत्र दान करते हैं, वो महंत गुरु है, परंतु जगत गुरु है नित्यानंद। इन्होंने ईश्वर तत्व है, ये जीव तत्व है, महत्तम जीव तत्व है। ऐसे ही कृष्ण द्वैपायन शक्तावेश अवतार, ज्ञान शक्ति का प्रकाश है उनमें, इसलिए वेद ज्ञान को संसार में प्रकट किया। बिना कृष्ण शक्ति कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान साक्षात अवतार लेते हैं, कभी कभी महत्तम जीव के माध्यम से अपना काम निर्वाह करते हैं। उद्देश्य अधिकार अनुसार जहाँ जिस प्रकार शक्ति प्रकाश करने की आवश्यकता है, भगवान वहाँ पर उतना ही शक्ति प्रकाश करते हैं। ये वेद को उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण के ये संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। वो काम के लिए भगवान मत्स्य रूप धारण किया। पृथ्वी को उद्धार करने के लिए भगवान सुगर रूप धारण किया। तो वो पृथ्वी को उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान जगत गुरु होते हुए भी वेदवाणी को प्रकाश करने के लिए वेदव्यास रूप धारण करके वेद विभाग, पुराण रचना, उपनिषद विचार और पंडितों के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र रचना की। परंतु चित्त का संपूर्ण प्रसाद प्राप्ति करने के लिए जब अपना कर्म लेके सोचने लगे, उसी समय नारद मुनि आके उनको उपदेश किया था। उपदेश के अनुसार भक्ति योग समाधि में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करके उन्होंने संपूर्ण उनका चित्त संपूर्ण रूप से प्रसन्न हो गई और नारद जी की आज्ञा से, भगवान की कृपा से सभी जीवों के अंतर प्रसाद प्राप्ति करने के लिए, प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने भक्ति योग समन्वय स्वरूप श्रीमद् भागवत रचना की। श्रीमद् भागवत ही उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना। क्योंकि चित्त प्रसन्न होने के बाद और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पढ़ते हैं, प्रमोशन मिल जाए, फिर पढ़ाई की आवश्यकता नहीं मिलती है। चलते हैं, गंतव्य मिल जाए तो गति की आवश्यकता नहीं है।
जब तक साध्य प्राप्ति नहीं होते है तब तक जीव साधन करती है। साध्य क्या है? आनंद, नित्यानंद, प्रेमानंद, परमानंद की शब्द है। परंतु अपना काम से जब नहीं होते है तब गुरुजी उपदेश करते हैं, जैसे नारद वेदव्यास को उपदेश करते हैं, आप जो कुछ किया है जीवों के कल्याण के लिए, आप जो कुछ किया है वो कल्याण पर नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें कृष्ण रास प्रसंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। मानो एक बाल्टी पानी है, उसमें 50 ग्राम चीनी डाल दिया और घोट के सबको देते हैं। सब लोग बताते हैं ये मिठाई नहीं हुआ, मिठाई नहीं हुआ। मिठाई कैसे होगा? उसमें तो थोड़ा चीनी दिया, और पर्याप्त चीनी वह पर गिरना डालना चाहिए। तो सुबह शाम 2 बार भगवान की याद से चित्त तो संपूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होता है। सुबह एक बार एक माला हरिनाम करते हैं और शाम को टाइम एक बार हरिनाम एक माला करते हैं। सारा दिन तो इधर उधर घूमते हैं, तो चित्त की प्रसन्नता कैसे मिल सकती है? निरंतर रहना चाहिए। माखन उठाने के लिए जैसे मंथन रज्जु को बारंबार घुमाने पड़ते हैं, जब तक माखन नहीं निकलती है तब तक घुमाते रहते हैं। परंतु बीच बीच में छोड़ के दूसरा काम में जब जाते हैं ना, उसके कारण 26 घंटा ऐसे घटने से माखन नहीं निकलती है। तो मानो एक समय एक नगात भजन को चाहिए। वेदव्यास की रचना में हरिकथा है, सब स्थान पर नहीं है। हरि को लक्ष्य करके उन्होंने पुराण रचना नहीं किया है, ये तो दोष है। जीव के कल्याण के लिए उन्होंने सब कुछ रचना किया है, परंतु भगवान की प्रसन्नता के लिए तो कुछ नहीं किया। इसलिए चित्त प्रसाद नहीं प्राप्त होता है। हे मानव, इस संसार में जितना गुरु है सब वेदव्यास की बात ही, और कुलगुरु लोग ऐसे ही उपदेश करते हैं, ये काम करो वो काम करो, कल्याण होगा, संसार का मंगल होगा। ये सांसारिक मंगल के लिए सब काम, ये हरिभजन करो, गिरिराज परिक्रमा करो, संसार की कल्याण के लिए ना, संसार का कल्याण के लिए गिरिराज परिक्रमा करो, चाहे वैष्णव देवी देखो, चाहे बद्रिकाश्रम में जाओ, चाहे बांकी बिहारी दर्शन करो, ये सब काम ही देगी सांसारिक काम के लिए। हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं, इस प्रकार पहचानते नहीं, केवल अपना धंधा के लिए, सांसारिक धंधा के लिए, स्त्री पुत्र परिजनों की सेवा के लिए वो ऐसे ही चलते हैं, तो इससे चित्त प्रसन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार गोवर्धन परिक्रमा से, इस प्रकार हरि भजन से, ऐसी कई धर्म कर्म से चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता है। परंतु भगवान के चरणारविंद में आत्मसमर्पण करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रीति के लिए जिंदगी बीता देना उचित है। जब तक आत्मसमर्पण नहीं होता है
जब तो कोई आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तब तो उनको कोई स्वीकार नहीं करते हैं। करते हैं कि एक लड़की जब तो कोई पुरुष को अपना पति के रूप से स्वीकार नहीं करती तब तो वो पुरुष उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं, जेतु उसमें संबंध नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं किया। तो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का धाम को परिक्रमा लगाते हैं, किंतु भगवान से संबंध नहीं जुड़ते हैं। ईटा लेके मकान बना देते हैं भगवान को। अपना मकान प्राप्ति करने के लिए ईटा के घर रास्ता में लगा देते हैं। विचार क्या है? भगवान तुम रास्ता में रहो, मैं अट्टालिका में रहूं। यही तो वहाँ भाई रास्ता में ईटा है, वहाँ के मकान बना देते हैं भगवान को, 2-3 मंजिल बना देते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे 3 मंजिल मकान बन जाए। तो भाई इसका अर्थ है तुम रास्ता में रहो, मुझे 3 मंजिल पर रखो। गोविंद मंगलम, ये भक्ति का प्रकार नहीं है। भक्ति का लक्षण है जब तक व्यभिचारी भाव है तब तक उसमें भक्ति नहीं मिलते हैं। जब तक नैष्ठिक भाव नहीं मिलते हैं तब तक संबंध ज्ञान के साथ करो। गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन के पास ही टाट्टी पेशाब करती है, उसका ज्ञान है। कहाँ टाट्टी करते हैं, कहाँ पेशाब करते हैं, सारे दुनिया की बातें लेके परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा होता है कि अरे भगवान की बातें लेके परिक्रमा करो, तब तो फल मिलेगा। आपने संसारी बातों को लेके घूमते आई, माने वो संसार में ही घूमते आई, गोवर्धन में घूमते नहीं। तत्व तो गोवर्धन में घूमते नहीं। ये पूर्णिमा का प्रसिद्धि किस प्रकार है? जब सनातन गोस्वामी अपने आप प्रकट हो गई तब ब्रजवासी लोग ये मस्तक मुंडन करके उनके अपराकित कलेवा लेके गोवर्धन परिक्रमा किया। गोवर्धन परिक्रमा करके वृंदावन जाके बिलासकुंज में समाधिस्थ किया। एक है प्रसिद्धि, इसका नाम मुड़िया पूर्णिमा। वो चकलेश्वर में सनातन गोस्वामी शरीर छोड़ दिया था। इसी कारण है पूर्णिमा मुड़िया पूर्णिमा नाम से प्रसिद्ध है। परंतु पहले नाम है गुरु पूर्णिमा। ये दोनों तिथि को अवलंबन करती है भक्त लोग गोवर्धन आदि परिक्रमा लगाती है। सनातन गोस्वामी के अनुसार सनातन गोस्वामी हर दिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। तो नित्य सिद्ध पार्षद है। जब करते करते थक गया और चल नहीं पाते तब भगवान एक चरण चिन्ह जब पत्थर गोवर्धन शिला उनको देके बोले सनातन इसको परिक्रमा लगाओ तो परिक्रमा हो जाएगा, इतना घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने ले गया था। तो वृंदावन में है, परंतु वृंदावन से जब भगवान जयपुर में चले गए
तब जयपुर में ले गए। ते फिक्स नहीं जे यहाँ पर दिखाते हैं वहाँ पर भी दिखाते हैं। कोई बताते हैं ठाकुर चले गया तो गोवर्धन भी वहाँ पर चले गया। फिर तो इन्होंने बताते हैं ना यहाँ पर आए, ये भी दिखाते हैं चरण चिन्ह, वहाँ पर भी दिखाते हैं। ठीक है, गोवर्धन शिला है तो प्रणाम करो, और क्या। जैसे दास गोस्वामी का गोवर्धन शिला छोटा सा है, तो कोई बताते हैं कृपा सिंधु बाबा ओ राधा रमन गोसाई के सेवा के माध्यम से, गोसाई को सेवा के माध्यम से प्रसन्न करते हुए उन्होंने मांगा तो उनको दे दिया। इसलिए वो कृपा सिंधु बाबा के भागवत निवास में है गोवर्धन शिला, और उन्होंने कहते हैं नहीं यहाँ पर है। गोकुलानंद में शिला दिखाती है। जय श्री राधे। संसार में दो गोकुल हो गया, एक न्यू गोकुल, न्यू मदन मोहन, न्यू गोविंद और न्यू गोपीनाथ। इसका अर्थ क्या है? जब ओरिजिनल तो है, न्यू लिखा, न्यू बोलने की आवश्यकता क्या है? मैंने उसका नाम से डुप्लीकेट बनाया, नीरो प्लस, वो डुप्लीकेट हो गया। निर्मा सात डुप्लीकेट बना दिया। वैसे डुप्लीकेट चलते हैं। गोकुल में जाओ वो तो बल्लभ गोकुल है, और वहाँ वन गोकुल है। फिर वृंदावन में आ जाओ, कालिए दाओ, इमली तला का पास, ये मदन मोहन के पास है कालिए दाओ। फिर भी चीरघाट के पास एक कालिए दाओ है, वही लगाते हैं। कदम पेड़ है, कपड़ा झुला देते हैं और बताते हैं ये तो कालिए दाओ है। ऐसे नवद्वीप में गंगा के उस पार, वहाँ पर भी नवद्वीप खुल दिया, मायापुर खोल दिया। कई बताते हैं प्राचीन मायापुर है, तो कोर्ट में बताते हैं प्राचीन शब्द का अर्थ तो क्या है? नया और प्राचीन, ये शब्द कहाँ से आ गया? एक ही आदमी प्राचीन और नया दो होते हैं, दो कैसे होता है? ये सब बात छोड़ करो। उद्देश्य की सनातन गोस्वामी के बारे में वे बताते हैं, जो उनका चरित्र अद्भुत चरित्र है। हम पीछे आलोचना करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा में उनके उद्देश्य में ये परिक्रमा चालू हो गई। दुनिया भर ये परिक्रमा चलती है। मुड़िया पूर्णिमा नाम से प्रसिद्ध है। हर पूर्णिमा में लोग आते हैं, ठीक ही, क्योंकि गुरु पूर्णिमा में विशेषता मानते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी के, लेकिन सनातन गोस्वामी को और लाखों लोग नहीं जानते हैं। सनातन गोस्वामी कौन थे, कौन है, वो कोई नहीं जानते। ये लाखों लोग घूमते हैं, ये सब लोग नहीं जानते हैं। सब लोग सुनते ही चला, ए चलो मुड़िया पूर्णिमा में परिक्रमा करके आओ। तो मुनि व मुड़िया पूर्णिमा, अरे मुड़िया पूर्णिमा किसके लिए? पूर्णिमा का नाम मुड़िया हुआ किसके लिए? वो नहीं जानते हैं। तो जानो, इस सनातन गोस्वामी के कारण इधर व्रजवासी लोग मस्तक मंडन कर सनातन गोस्वामी के कलेवार लेके परिक्रमा करके वृंदावन ले गए, वहाँ पर समाधि दिया। इसलिए वहाँ से ये पूर्णिमा मुड़िया पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। गोविंदेति मंगलम। भगवान कृपा करें। वेदव्यास का आविर्भाव तिथि, सब लोग वेदव्यास को याद करें, पूजा करें। अपना अपना गुरु की पूजा
तो कर्तव्य है, वो तो करते ही हम हर दिन, परंतु वेदव्यास का आविर्भाव तिथि में वेदव्यास को पूजा करना उचित है। कोई बताते हैं अपना गुरु पूजन से वेदव्यास पूजन हो जाते हैं, तो अपना गुरु के भोग निवेदन से वो भगवान का पूजन हो जाती है, तो फिर भगवान को पूजन करने की आवश्यकता क्या है? ये बात सही नहीं है। अपना अपना गुरु पूजन तो नित्य धर्म है, वो करो, परंतु जिनका आविर्भाव तिथि उनको भी पूजा करो, यही नीति है। जय श्री राधे गोविंद मंगलम। भगवान कृपा करे।